हाँ जी बेटा, ये अपना ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 9 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 4 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 4 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਵ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ of relation which is transitive but neither reflexive nor symmetric nor antisymmetric। देखो बेटा ਅੱਗੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਸਮਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਬਟ ਨਾਈਦਰ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਨੋਰ ਸਮਿਟਰਿਕ ਨੋਰ ਐਂਟੀ ਸਮਿਟਰਿਕ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਮਿਟਰਿਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਂਟੀ ਸਮਿਟਰਿਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈੱਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ A 1 2 3, ਉਹਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਖਣੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ A ਕ੍ਰੋਸ A ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ A ਕ੍ਰੋਸ A ਦਾ ਮਤਲਬ 1 2 3 ਨੂੰ ਹੀ 2 ਵਾਰ ਲਿਖਣਾ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1 2 3, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ 2, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1 2 3, ਫਿਰ 3, ਫਿਰ 1 2 3, ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਬਣਨ ਬਟ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੋਣ, ਨਾ ਹੀ ਸਮਿਟਰਿਕ, ਨਾ ਹੀ ਐਂਟੀ ਸਮਿਟਰਿਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ 1 1 2 2 ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ 3 3 ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 3 3 ਵੀ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 2 2 1 ਲਿੱਤਾ, ਕਲੀਅਰ, 1 3 ਅਤੇ 2 3 ਲਿੱਤਾ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ, ਸਮਿਟਰਿਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਸਮਿਟਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਏ ਬੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ, ਬੀ ਸੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ ਵਾਸਤੇ ਏ ਸੀ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1 2 ਹੈ, 2 1 ਹੈ ਤਾਂ 1 1 ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, 1 3 ਤਾਂ 3 ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, 2 3 ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀ, ਬਟ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 A ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਬਟ 3 3 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਮਿਟਰਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਮਿਟਰਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 1 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਬਟ 3 1 ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ 3 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਸਮਿਟਰਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 1 2 ਅਤੇ 2 1 ਦੋਨੋਂ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ 1 ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2। ਐਂਟੀ ਸਮਿਟਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿਵ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਰ ਔਨ A 1 2 3 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੋਥ ਸਮਿਟਰਿਕ ਐਂਡ ਐਂਟੀ ਸਮਿਟਰਿਕ। ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਿਟਰਿਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਸਮਿਟਰਿਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਆਰ ਇਜ਼ ਨਾਈਦਰ ਸਮਿਟਰਿਕ ਨੋਰ ਐਂਟੀ ਸਮਿਟਰਿਕ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਿਟਰਿਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਸਮਿਟਰਿਕ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਿਟਰਿਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਸਮਿਟਰਿਕ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਸਮਿਟਰਿਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਸਮਿਟਰਿਕ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਿਟਰਿਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਸਮਿਟਰਿਕ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੇ A ਸੈੱਟ 1 2 3 ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਹੋਣਗੇ 1 1 2 2 ਅਤੇ 3 3। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਮਿਟਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨਗੇ ਨਾਲੇ ਐਂਟੀ ਸਮਿਟਰਿਕ ਦੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 1 1। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ 1 1 2 2
मीनस अपने आप दे नाल रिलेशन बनाउणगे सिर्फ उदों वो सिमेट्रिक ते एंटी सिमेट्रिक जिहड़ी हैगी है प्रॉपर्टी होल्ड करनगे। उस तो बाद एंटी सिमेट्रिक वास्ते आपां चूज कर सकते हैं विच इज़ नाइदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक वास्ते 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 आपां ने एलीमेंट्स लत्ते। हुण जिवें कि 2 3 इहदा एलीमेंट है, 3 2 इहदा एलीमेंट नहीं हैगा गा, ते 1 2 ते 2 1 इहदे एलीमेंट हैगे हैगे, इस करके ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं हैगा गा। ओके, तो अगली एग्जाम्पल देने विच इज़ बोथ इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्शल ऑर्डर रिलेशन। ये बेटा तुसी देख लियो, ये क्योंकि अपने अपनी तरफ तो देनी हैगी, ये भी अपने को आ जाएगा 1 1 2 2 ते 3 3 वाले ही एलीमेंट्स आ जाएंगे जिहड़े इक्विवेलेंस रिलेशन भी बनाउणगे ते पार्शल, क्योंकि सिमेट्रिक ते एंटी सिमेट्रिक का ही फर्क हुंदा इहदे विच भी, जे ध्यान नाल याद रखे होवे। इक्विवेलेंस रिलेशन ते पार्शल ऑर्डर रिलेशन की डेफिनेशन च भी सिमेट्रिक ते एंटी सिमेट्रिक का ही फर्क है। ये कदों बनता जो 1 1 2 2 3 3 होंगे, तो इट मीनस उस टाइम ही यही एग्जाम्पल भी यही बनेगी। तो गिवन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन हैविंग द स्टेटेड प्रॉपर्टी, ये भी अपने नाइदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक, अगेन अपने को वही चीज़ आ गई ऊपर आप करके आए, ये कर सकते हो। आर इज़ ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट आर यूनियन आर इनवर्स इज़ नॉट ट्रांजिटिव। अपने अजिहा रिलेशन लेना है जिहड़ा ट्रांजिटिव तो हैगा, आप तो वो ट्रांजिटिव है, पर जो उहदे इनवर्स नाल यूनियन लैने वो ट्रांजिटिव नहीं बनता गा। आर तो अपने को ट्रांजिटिव है, ध्यान नाल देखो 1 2 2 3 1 3 लत्ता, जो आप इहदा आर इनवर्स कढ़ियागा 2 1 3 2 3 1 बन गया, क्योंकि ये कंपोनेंट्स नूं आपां ने जस्ट इंटरचेंज करना होंदा है। तो जो इन्हां दी यूनियन कढोगे आर यूनियन आर इनवर्स अपने को आ बन जाएगा। तो जो ये एलीमेंट पिया 1 2 ते 2 1 क्लीयर, तो जिहदी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बनती है 1 1 दैट इट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस यूनियन, इट मीन दिस इज़ नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह तुसीं की है एग्जाम्पल्स चूज करनी है जिहड़ियां कुछ भी मीनस जो भी यही कह रहे हैं वो वाली प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं या नहीं करते हैगे। ठीक है, अगली एग्जाम्पल भी इसे कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनस आपां ने बनाने हैगे जिहड़े सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक है। ओके बेटा, अगे 9th एग्जाम्पल है, जिमें कि ए ते बी तुहानूं सैट दिते हैं, रिप्रजेंट ए क्रॉस बी ग्राफिकली, वट इज़ ए क्रॉस बी मॉडलो। ठीक है, इस पहला आपां की करांगे, ए ते बी आपां नूं सैट गिवन है, पहला आपां ए क्रॉस बी की वैल्यू कढ़ांगे, कार्टीजन प्रोडक्ट कढ़ांगे। कार्टीजन प्रोडक्ट तुहानूं दसी हुई किस तरह कढ़नी है। पहला तुसीं की करना है, फस्ट एलीमेंट फस्ट कंपोनेंट लओगे, उहदे नाल बी दे सारे कंपोनेंट लिखोगे 1 2 3, फिर सैकेंड कंपोनेंट लत्ता बी फस्ट प्लेस ते फिर 1 2 3 आ गए, ये तुहाडी कार्टीजन प्रोडक्ट आ जाएगी। फिर इनू ग्राफिकली जो तुसीं शो करोगे तो ग्राफिकली का मतलब की है, एक पासे तुहाडी एक्स एक्सिस ड्रा करोगे, एक पासे वाई एक्सिस ड्रा करोगे। तो एक्स एक्सिस ते तुसीं ए दे कंपोनेंट्स लिख लोगे, ए ते बी, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ते वाई एक्सिस ते तुसीं बी दे कंपोनेंट लिख ले 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस ते। ठीक है बेटा, लाइनस नूं जस्ट तुसीं कुछ नहीं करना हैगा, जस्ट लाइनस नूं ड्रा कर देना ते डॉट्स दे नाल उन्हां नूं शो कर देना है पॉइंट्स नूं। नाउ ए क्रॉस बी मॉडलो की वैल्यू की होएगी, आपां नूं ये चीज़ पता है, ए क्रॉस बी मॉडलो इज इक्वल टू ए मॉडलो डॉट बी मॉडलो। ए मॉडलो दे विच किन्ने नंबर ऑफ एलीमेंट्स है 2, बी मॉडलो च नंबर ऑफ एलीमेंट्स है 3, दैट इज इक्वल टू 6, मतलब 6 जी हैगी है उहदे विच टोटल नंबर ऑफ एलीमेंट्स आ जाएंगे। क्लीयर। अगली डेफिनेशन एग्जाम्पल हैगी है कि जिस तरह कि एक्स बी सैट विद 6 एलीमेंट्स, एक्स अपने को कोई सैट है, ठीक है, जिहदे विच कि 6 एलीमेंट्स है। हाउ मैनी रिलेशनस कैन बी देयर ऑन ए, आपां किन्ने रिलेशनस बना सकते हैं। ठीक है, हाउ मैनी रिलेशनस कैन बी देयर ऑन ए, हाउ मैनी रिलेशनस ऑन एक्स आर रिफ्लैक्सिव। फिर आप दसना है कि किन्ने आप रिफ्लैक्सिव रिलेशन बना सकते हैं। क्लीयर।
पहला आपां दसने हाउ मैनी रिलेशनस कैन बी देयर ऑन ए। वी नो रिलेशन ऑन ए एक्स अपने को सैट है जिस 6 एलीमेंट है, ए आपां रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है बेटा। तो वी नो रिलेशन ऑन ए इज़ सबसैट, जो रिलेशन होंदा है ਉਹ ए क्रॉस ए कार्टेजन प्रोडक्ट का सबसैट होंदा है ना। ये तो आपां नूं पता ही है डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। तो आपां देखांगे पहलां तो कार्टेजन प्रोडक्ट च किन्ने नंबर ऑफ एलीमेंट्स है। कार्टेजन प्रोडक्ट च नंबर ऑफ एलीमेंट्स किन्ने हुंदे आ, जिन्ने कि अपने कोले ए दे विच नंबर ऑफ एलीमेंट्स होणगे, फिर दूसरी बार नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए होणगे, यानी कि 6 ये भी 6 नंबर ऑफ एलीमेंट्स है, ये भी 6 नंबर ऑफ, क्योंकि अपन एक्स 6 नंबर ऑफ एलीमेंट्स गिवन है ना। तो टोटल 36 जेडे है अपने कोले नंबर ऑफ एलीमेंट्स हो गए। तो नंबर ऑफ सबसैट्स आप किन्ने बना सकते हैं, ये ए क्रॉस ये नंबर ऑफ सबसैट्स किन्ने बन सकते, 2 दी पावर n। n इज़ द जिन्ने नंबर ऑफ एलीमेंट्स है कार्टेजन दैट इज़ 36, यानी कि ये किन्ने सबसैट्स बन सकते, 2 दी पावर 36। जिन्ने सबसैट्स बन सकते हैं उन्ने रिलेशन बन सकते हैं, मीनस सो डिफरेंट रिलेशनस ऑन ए आप किन्ने बना सकते हैं, 2 दी पावर 36। उस तो बाद आपां नूं पता है रिफ्लैक्सिव रिलेशन की गल करनी है। सैकेंड पार्ट पूछ रहे हाउ मैनी रिफ्लैक्सिव रिलेशन ऑन एक्स आर रिफ्लैक्सिव। आपां नूं पता है फॉर रिलेशन टू बी रिफ्लैक्सिव हर एक एलीमेंट का अपने आप के नाल रिलेशन होना चाहिए है। सो रिलेशन मस्ट कंटेन, रिलेशन घट्टो घट्ट 6 एलीमेंट तो पक्के ही है, 6 एलीमेंट तो पक्के ही होने चाहिए ना, क्योंकि 6 एलीमेंट जो है सपोज 1 2 3 4 5 6 है, तो हरेक एलीमेंट का जो अपने आप के नाल रिलेशन होएगा 1 into 1 2 into 2 है ना, 1 1 2 2 3 3, ये एलीमेंट तो 6 पक्के है रिलेशन दे विच होने ही चाहिए है ना। फिर ही वो रिलेशन जो रिफ्लैक्सिव रिलेशन बनेगा, यानी कि बाकी दे जेडे 30 एलीमेंट्स हैं वो किसी भी तरह के मर्जी होन कोई फर्क नहीं पैंदा हैगा, बट 6 एलीमेंट्स तो अपने पक्के ही है, वो की होने चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होने। क्लीयर। तो मीन्स की हो गया द रिमेनिंग 30 एलीमेंट मे और मे नॉट बी टेकन। सो नंबर ऑफ रिफ्लैक्सिव रिलेशन की हो जाएंगे अपने को 2 दी पावर 30 हो जाएंगी। क्लीयर बेटा। उस तो बाद अपने को आ जाते हैं अगली एग्जाम्पल कि आपां एक्स सैट गिवन है जिस 10 नंबर ऑफ एलीमेंट्स है एंड द फैमिली दिस फैमिली आपां जिहड़ी हैगी है गिवन है इज़ ए पार्टीशन ऑफ एक्स दी पार्टीशन गिवन। डिटरमिन द इक्विवेलेंस रिलेशन कोरस्पोंडिंग टू द अबव पार्टीशन। आपने की करना है इक्विवेलेंस रिलेशन जिहड़ा है वो फाइंड आउट करना है बेटा। ये इक्विवेलेंस रिलेशन एक्स आपाने सपोज गिवन आपां एफ आपाने पार्टीशन ऑफ एक्स जिहड़ी हैगी सपोज कर लती कि इनू आपाने नाम एफ दे लता गा इज़ ए पार्टीशन ऑफ एक्स, तो आर आपाने सपोज कर लिया इक्विवेलेंस रिलेशन कोरस्पोंडिंग टू द पार्टीशन एफ ऑफ एक्स। दैन एफ शुड कंटिन्यू द डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ एक्स अंडर आर। तो जो आप इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है तो अपन इक्विवेलेंस क्लासेस जिहड़ियां हैगियां वो फाइंड आउट करनियां पैणगियां। इक्विवेलेंस क्लासेस बेटे तुहानूं दस्सिया सीगा वो हुंदियां हरेक एलीमेंट दियां जिन्हां दा उहदे नाल रिलेशन है। तो इक्विवेलेंट डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंट क्लासेस ऑफ एक्स विद रिस्पैक्ट टू आर विल बी अपने को लेके आह आपां गिवन है सैट। तो आप देखांगे इन्हां दा रिलेशन कि जिवें कि अपने को एलीमेंट्स हैगे 1 3 2 6। क्लीयर। ये जो एलीमेंट है आप इन्हां दी इक्विवेलेंस क्लास सिंस ईच एलीमेंट ए बिलोंग्स टू द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए जिहड़ा है उहदे विच जाना चाहिए। हुण जिवें कि आपां 1 क्लास है, ठीक है, जिहड़ी फस्ट क्लास है ਇਹਦਾ फाइंड आउट करना है कि ਇਹਦੀ क्लास च ਕਿਹੜੇ एलीमेंट जा रहे हैं। ਹੁਣ 1 ਦਾ 1 ਨਾਲ रिलेशन इत्थों पता चल रहा है, 1 ਦਾ 4 ਨਾਲ है, 1 ਦਾ 8 ਨਾਲ है ना। तो इट मीनस 3 ਦਾ इत्थों ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता चल रहा है 3 ਦਾ 3 ਨਾਲ है, 5 ਨਾਲ
ਤੇ 9 ਨਾਲ ਹੈਗਾ, 2 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਨਾਲ 7 ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ 6 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਲਸੋ R is symmetric and transitive, we find that therefore R ਕੀ ਹੈ, R ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਕੁਈਵੈਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਇਕੁਈਵੈਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 1 1 2 2 3 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣੇਗੇ 1 1 2 2 3 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, 4 4 ਆ ਜਾਣਗੇ, 5 5 6 6 7, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਿਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਮਿਟ੍ਰਿਕ ਬਣਨਗੇ ਐਂਡ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਾ 4 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, 1 ਦਾ 8 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, 2 ਦਾ 7 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, 3 ਦਾ 5 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, 3 ਦਾ 9 ਨਾਲ, 4 ਦਾ 1 ਨਾਲ, 5 ਦਾ 3। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਹ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਲੀਅਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਸਮਿਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਡ ਕਰੇ ਉਹਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 2 3 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ 4th A ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। 4th A ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।